Students, now some more question on maxima minima word problems. AB is the diameter of a circle and C is any point on the circle. Okay, show that the area of triangle ABC is maximum when it is isosceles. So in any question, the first step is to write the given and draw the figure. So we are drawing the figure here. Okay, now AB is the diameter and C is any point on the circle. So ABC will be a triangle and it will be a right angle triangle. It will be 90 degree. Why? Because angle of semicircle is a राइट एंगल. ये सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल है तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा. एंड O इज द सेंटर. ओके, सो दिस OB इज द रेडियस एंड OA इज ऑल्सो रेडियस. सो दिस कंप्लीट डिस्टेंस AB विल बी 2r. ओके, लेट AC इज x and BC is y. Okay, so this is the figure and now we will write the given because it is the first step of solving word problems. That first we need to write what is given here. So AB is the diameter of the circle which is AB is equal to 2r. Okay, and what we need to, and C is any point on the circle. This is given. Now let AC is equal to x and BC is equal to y. Okay, now उसके बाद क्या लिखते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना होता है, शो करना होता है. तो इसने हमसे कहा है कि शो दैट. सो हम यहां पर लिखेंगे टू शो. व्हाट वी नीड टू शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज आइसोसेलेस. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is maximum if triangle ABC is isosceles. ओके, ये लिख लिया, फिगर बना लिया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई. सेकंड स्टेप में क्या बताया था मैंने, दैट वी नीड टू स्टार्ट विद द फॉर्मूला फॉर व्हाट वी नीड टू शो मैक्सिमम और मिनिमम. तो यहां पर हमें मैक्सिमम मिनिमम किसके थ्रू शो करना है, हमें मैक्सिमम मिनिमम ट्राइंगल के एरिया को शो करना है. ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हम उसी के फॉर्मूले से स्टार्टिंग करेंगे स्टेप 2 में. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, A is equal to half base into height. Half. Now see here, this is 90 degree angle, so this will be base and this will be height, so half x into y.
this will be the area. Okay, A is equal to 1 by 2 x into y. Okay, now give it to equation 1. In this question, see the figure. If this is right angle triangle, then we can use the Pythagoras theorem here. So it will be 2r whole square is equal to x square plus y square. So in triangle ABC, by Pythagoras theorem, AB square is equal to AC square plus BC square. So 2r whole square is equal to x square plus y square. So it will be 4r square is equal to x square plus y square. So y square is equal to 4r square minus x square. Why we are doing this? Because at the third step we must be sure about getting the formula with one variable. अब देखिए हमने जो फॉर्मूला लगाया है उसमें दो अननोन वेरिएबल्स हैं और हमें फॉर्मूला कैसा चाहिए, वन वेरिएबल में. इसलिए हम y स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर में निकाल के और हम पुट करेंगे और यहाँ पर r जो है वो गिवन रेडियस है, सो इट इज कांस्टेंट. ठीक है, सो देखिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं. बाय इक्वेशन 1. अब आप इक्वेशन 1 को देखिए, a इज इक्वल टू हाफ एक्स वाई. Squaring both side, so it will be a square is equal to 1 by 4 x square y square. Since a is maximum according to the question, therefore a square will also be maximum. So let a square is equal to s. So s is equal to 1 by 4 x square, and at the place of y square we will write 4r square minus x square. Okay, so this will be 1 by 4 into x square into 4r square minus x to the power 4. Okay, so see here, s is equal to 1 by 4 x square r square minus x to the power 4. It is s. Okay, now in the next step, it is third step completed. So now in the fourth step, to find out maxima minima, we need to put that differentiation of this formula equal to 0. So first we need to differentiate it. So ds अपॉन, अब ये एक वेरिएबल में चेंज हो चुका है x में, r तो कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस है. सो ds अपॉन
dx, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सो 1/4 कांस्टेंट बाहर रहेगा, 4r² is constant and then differentiation of x² is 2x and then 4x cube. Okay, so it will be 1/4 8r² x minus 4x cube. आप 4 कॉमन लेकर कट कर देंगे, सो ये हो जाएगा 2r² x माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा ds अपॉन dx. टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा ds अपॉन dx इज इक्वल टू 0. ओके, so 2r² x minus x cube is equal to 0. When you will take x as common, then 2r² minus x² is equal to 0. X is equal to 0. Not possible. Why? Because x we have considered as a side of the triangle. अब किसी ट्राइंगल की एक साइड ही अगर 0 हो जाएगी तो फिर वो ट्राइंगल ही बाकी नहीं रहेगा, सो ये तो पॉसिबल नहीं है. तो सेकंड कंडीशन क्या है? 2r² minus x² is equal to 0. That's why x² is equal to 2r². Therefore x is equal to √2r. This is the value of x. Now अब हमें y की वैल्यू निकालनी है. सो अब आप देखिए कि इससे पहले हमने y² इज इक्वल टू 4r² माइनस x² वैल्यू निकाली थी. सो सिंस y² इज इक्वल टू 4r² माइनस x², therefore y² इज इक्वल टू 4r² माइनस √2r होल स्क्वायर. So y² is equal to 4r² minus 2r², so it will be 2r². Okay, therefore y is equal to √2r. आप देखिए x और y दोनों ट्राइंगल की साइड्स हैं और दोनों की ही वैल्यू √2r आई है. इट मीन्स सेम है. और अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स सिमिलर हो, इक्वल हो, तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है. सो वन थिंग वी हैव प्रूव्ड. तो हमने ये प्रूव कर दी है. ठीक है, सो हम यहां लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू y, therefore given triangle ABC is an isosceles triangle. Okay, now at the last step, this is the fourth step that we have solved this for what we need to prove. Now at the fifth step we have to prove that the area is maximum. मैक्सिमम एरिया भी हमें प्रूव करना है ना. क्वेश्चन में देखिए आप, एरिया ऑफ एबीसी इज मैक्सिमम एंड इट इज आइसोसेलेस. तो अगर अब ये आइसोसेलेस है तो इसका एरिया क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए. सो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे टू प्रूव मैक्सिमम एरिया एट x इज इक्वल टू y. अगर x इज इक्वल टू y है तो एरिया मैक्सिमम होना चाहिए. और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और उसकी वैल्यू फिर हमें x इज इक्वल टू y पर निकालनी होगी. ठीक है, सो हम निकालेंगे. देखिए ds अपॉन dx पहले जो था
वो क्या था, ds अपॉन dx। यहाँ देखिए क्वेश्चन में अभी हमने सॉल्व किया था 2r स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, 2r स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। सो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, एक्स 1 हो जाएगा, माइनस 3x square. This is the second order derivative. Now we have to check the value at x is equal to y. So d square s upon dx square and the value x is equal to y is equal to root 2 r. इस पर वैल्यू निकालेंगे। So 2r square माइनस 3x की जगह पर रखा रूट 2r और उसका क्यूब किया, सॉरी स्क्वायर। सो इट इज 2r स्क्वायर माइनस 3 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2, देयरफॉर 2r स्क्वायर माइनस 6r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4r स्क्वायर। एंड सिंस इट इज निगेटिव एंड निगेटिव पीपल हैव मैक्सिमम प्रॉब्लम इन लाइफ, ये आपको मैंने याद रखने के लिए बताया था। तो क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव आई है इसलिए एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम लिखेंगे सिंस डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज निगेटिव एट एक्स इज इक्वल टू वाई, therefore area of triangle ABC is maximum. ओके, सो ये हमने प्रूव कर दिया। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। देखिए ध्यान दीजिए, मैक्सिमम वॉल्यूम, और हमें इसका मतलब वॉल्यूम का ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, सेकंड स्टेप में। एंड गिवन स्लैंट हाइट, अब स्लैंट हाइट गिवन है, इट मीन स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी, एल कांस्टेंट हो जाएगी। और ये सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा, कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 होगा। ये हमें प्रूव करना है, सीबीएसई 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए शो करते हैं। See, at the first step, you need to draw the figure. Okay, सेमी वर्टिकल एंगल को थीटा कंसीडर कर लिया, स्लैंट हाइट एल हो गई, हाइट एच हो गई, और रेडियस स्मॉल आर। ओके, सो इसे लिख लेते हैं। सो व्हाट इज गिवन टू अस, क्या हमें दिया हुआ है, इन अ कोन let theta be semi-vertical angle and h is height, L is slant height and RB the radius. ओके, नाउ फिगर हो गया जो गिवन है वो, अब जो हमें शो करना है। एंड वी कैन राइट हियर द नेम एज ABC. So to show angle of
सेमी वर्टेक्स is cos inverse 1/√3. Then what angle of semi vertex is cos inverse 1/√3 with मैक्सिमम वॉल्यूम. ओके, सो मैक्सिमम वॉल्यूम भी शो करना है हमें. ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई. अब सेकेंड स्टेप में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और फॉर्मूला हम उसी का अप्लाई करते हैं. ठीक है, सो जो हमें मैक्सिमम या मिनिमम शो करना होता है. सो लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब आप देखिए, क्योंकि हमें थीटा एंगल की बात कर रहे हैं, हम सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है, तो हमें उस एंगल के फॉर्म में ही वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि यहां पर 2 वेरिएबल है और हमें उसे 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. सो आप यहां देखिए, इन दिस ट्राइंगल, सी इफ दिस इज थीटा, then the opposite side is perpendicular, this one base, and the opposite of 90 is hypotenuse. So the ratios क्या हो जाएंगे? रेशो यहां समझिए, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन H मीन्स R अपॉन L, एंड cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स H अपॉन L. यहां दोनों से यहां R की वैल्यू L साइन थीटा और H की वैल्यू L cos थीटा आ जाएगी. सो R इज इक्वल टू L साइन थीटा एंड H इज इक्वल टू L cos थीटा. सो जब हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा पूरा फॉर्मूला एक सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा. So V is equal to 1/3 pi L sin theta square into L cos theta. Okay. Now V is equal to 1/3 pi. This will be L square and this is L, so it will be L cube, and then sin square theta इंटू कॉस थीटा. सो अब पूरा फॉर्मूला एक ही अननोन वेरिएबल थीटा में आ चुका है. ठीक है, और L क्यूब कांस्टेंट है और π/3 भी कांस्टेंट है. सो नाउ दिस इज थर्ड स्टेप कंप्लीटेड. नाउ एट द फोर्थ स्टेप, टू फाइंड आउट द मैक्सिमा मिनिमा, वी नीड टू डिफरेंशिएट इट. अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मैक्सिमम, और उस डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा. सो अब हम यहां प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. सो टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा, ds अपॉन dv अपॉन d थीटा इज इक्वल टू 0. तो पहले dv अपॉन d थीटा तो हम निकालें. सो dv अपॉन d थीटा इज इक्वल टू, देखिए, पाई L क्यूब अपॉन 3 कांस्टेंट. ना प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे. प्रोडक्ट फॉर्मूले में साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 साइन थीटा, और चेन रूल से साइन थीटा का कॉस थीटा. ओके, सो इट विल बी पाई L क्यूब अपॉन 3. आप यहां देखिए, साइन थीटा और साइन थीटा कॉमन आ रहा है. सो साइन थीटा को मैंने कॉमन ले लिया. फिर
ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ पाई एल क्यूब अपॉन 3 साइन थीटा। अब देखिए इस साइन थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं। ऐसा क्यों? बिकॉज हमें जो प्रूव करना है उसमें हमें कॉस रेशो की जरूरत है, इसलिए कंप्लीटली उसको कॉस में चेंज कर रहे हैं। पाई एल क्यूब साइन थीटा अपॉन 3। अब देखिए ये -1 हो जाएगा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1। नाउ पुट dv अपॉन d थीटा इज इक्वल टू 0। जब आप 0 पुट करेंगे इसे, सो ये हो जाएगा पाई एल क्यूब अपॉन 3 साइन थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए पाई एल क्यूब 3, ये तो डिनोमिनेटर में जाके 0 हो जाएगा। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 जब आप करोगे तो ये साइन 0 ही हो जाएगा और उससे थीटा एंगल जो है वो 0 बन जाएगा और एंगल 0 यहां नहीं हो सकता। सो नॉट पॉसिबल। तो आप देखिए अब सेकंड कंडीशन दैट 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अगर फर्स्ट कंडीशन नहीं है तो सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी। अब जब सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी तो आप यहां पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3 एंड देयरफॉर cos theta is equal to cos inverse 1/√3 and that we have to prove. So theta is equal to cos inverse 1/√3. First thing we have proved. But अभी हमें फिफ्थ स्टेप में क्या करना है बताइए। फिफ्थ स्टेप में हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है और वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करने के लिए फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, फिफ्थ स्टेप में हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं और उसकी वैल्यू गिवन पॉइंट पे निकालते हैं। ठीक है, सो आप देखिए हम यहां पर गिवन पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे। टू प्रूव मैक्सिमम वॉल्यूम, आपको सिस्टमेटिक सारी स्टेप्स लिखनी पड़ेंगी। टू प्रूव मैक्सिमम वॉल्यूम d² v अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू। अब आप देखिए कि dv अपॉन अभी हमने dv अपॉन डी थीटा निकाला था और वो था पाई एल क्यूब अपॉन 3। ठीक है, सो यहां पर हम देखिए पाई एल क्यूब अपॉन 3 साइन थीटा इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, सो हम यहां पर जब d² v अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकालेंगे तो वही पाई एल क्यूब अपॉन 3, तो कांस्टेंट। अब आप देखिए साइन थीटा एज इट इज 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1 का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे सो 3 एज इट इज इंटू 2 कॉस थीटा एंड कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर -1 तो 0 हो जाएगा, देन प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1
ये एज इट इज रहेगा और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब आप यहां पर डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई एल क्यूब अपॉन 3। यहां देखिए ये पूरा मल्टीप्लाई में है, सो इट विल बी माइनस 3 टू जा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस 3 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3 पर। ठीक है, लेकिन वो अभी आप कैसे निकालेंगे, पहले आप सभी वैल्यूज को कॉस थीटा बना दीजिए। तो ये हो जाएगा पाई एल क्यूब अपॉन 3 माइनस 6, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए पहले, प्लस 3 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर पाई एल क्यूब अपॉन 3 आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6 कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 6 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। सो ये वैल्यू हो जाएगी पाई एल क्यूब अपॉन 3। यहां देखिए 6 प्लस 3 9 कॉस क्यूब थीटा और माइनस माइनस प्लस, सो माइनस 7 कॉस थीटा। अब यहां पर कॉस थीटा की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो पाई एल क्यूब अपॉन 3 9 कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 1/√3 माइनस 7 इंटू 1/√3 पाई एल क्यूब अपॉन 3। आप देखिए यहां पर 9 इंटू 1 अपॉन √3 इंटू √3 इंटू √3 मीन्स 3√3 माइनस 7 अपॉन √3। सो इट विल बी, ये देखिए ये 3 भी √3 इंटू √3 लिखकर और हम इसे √3 माइनस 7 अपॉन √3 लिख सकते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर 3 माइनस 7 अपॉन √3 आएगा और ये हो जाएगा माइनस 4 अपॉन √3। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 4 अपॉन √3। सो द होल वैल्यू विल बी माइनस 4 पाई एल क्यूब अपॉन 3√3। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है, ये डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3 पर। और ये वैल्यू क्या आई है, निगेटिव आई है, लेस देन 0। और जब लेस देन 0 निगेटिव होता है, सो निगेटिव पीपल हैव मैक्सिमम प्रॉब्लम इन लाइफ, मतलब मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम में वॉल्यूम होगा। सिंस डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज negative on cos theta is equal to 1/√3, therefore volume of cone is maximum when theta is equal to cos inverse 1/√3, hence proved.